So, who is this wonder kid? Whenever this 15-year-old takes the field, the world watches him, and he has taken the world of cricket by storm. Who is Vaibhav Suryavanshi? Where did this kid come from? And in the search of these answers, we have traveled all the way from Kolkata to here in Tajpur, Samastipur. And behind us is the residence of Vaibhav Suryavanshi and the same nets where he honed his skills to become one of the most promising, exciting, and devastating youngster with the bat on in the cricket world. Devashishda, we are here, and it's a village. It's not a city. It's on the in the outskirts of Patna, and we have to travel. We had to travel for around 3 hours to reach here from Patna, and it feels like the roots from where this kid has come. It feels like another story of rags to riches. Yeah, absolutely, and you can see the popularity the youngster has gained in the last 1 year or so. Means obviously we asked in one of the crossings in Tajpur, and everyone knows by his name, Vaibhav Suryavanshi. We just asked where is Vaibhav Suryavansi's house, and it literally taken just 1 minute to show guide us the way. And here we are, the pink painting on the house resembles Rajasthan Royals, and this is the same turf wicket. There is one turf wicket and one concrete wicket where his father gave his early lessons of cricket. Why? Absolutely, and in this video, you will see us traveling to places where Vaibhav Suryavanshi honed his cricketing skills. We will talk to his coaches, Manish Kumar Ojha, Ashok Kumar. Will talk to his Bihar teammates where he made his first-class debut and is again has taken the domestic cricket by storm as well. So we will track his entire journey from the roots, from where he became Vaibhav Suryavanshi, and of course now as people are saying here, even in his locality, that sky is the limit for him. There is no ceiling for him, and we will search for those exact answers. Where did Vaibhav Suryavanshi come from? What is his ceiling? Is he India ready? So yes, stay tuned to us with us in this journey as we track Vaibhav Suryavanshi's journey from this particular residence here in Tajpur, Samastipur to the heights of the cricketing world. So in Patna, the Gen Next Academy run by Manish Kumar Ojha has become the bedrock of Bihar cricket. Many cricketers are coming here since the emergence of Vaibhav Suryavanshi, and mostly the 7 to 10-year-old kid group is wanting to become the next Vaibhav Suryavanshi. Devashishda, you have seen the practice here, all the little kids running around trying to fine tune their game, learn the new techniques. You have seen some uh, elderly players as well. So how do you see this area? It is in between the farmlands here at the in Patna. So how do you see this? Yeah, I think what was very interesting from your interaction with both the coaches is that they did not want to tweak his technique, and that's the best part from the interaction, because I mean, they want to play his leave it his natural game. And that's the best part. Obviously, he was with Rajasthan Royals as well, where he had Rahul Dravid and Jubin Bharucha as well. Yes. So I think none of the coaches with Vaibhav Suryavanshi has tried to tweak his technique or his attitude. Means let him play, let him enjoy, and that's the best part. And what's the best part of the interactions are? We spoke to Manish Kumar Ojha, we spoke to Ashok Kumar as well, both his childhood coaches. But what Manish ji said was that he has similarities with MS Dhoni. Manish has spent a lot of time with MS also during his playing days, and what he said was that the mindset and the clarity that they both have in their game in the similar age is staggering. So maybe
from this area of Bihar, Jharkhand, UP, we are seeing the next emergence. I won't say MS Dhoni, he's still a 15-year-old kid, but we are seeing a miracle player, as Manish ji said. Yeah, absolutely, absolutely. And the journey means from coming from all the way from Tejpur, Yes. means his father used to drive him when he was a little kid, 12 years old. This is such a heartwarming story, and the father and son used to come here, and Vaibhav's mother used to prepare the food. They used to have their food here and stay here till the evening, and then go back, and 3 times in a week. And there has to be a lot of sacrifices, Shubha. Means obviously it's not just you make a Vaibhav Suryavanshi overnight. Means it's the hardships, it's the sacrifices of his parents, Sanjeev Suryavanshi, his Yes. mother, his coaches here, his earlier childhood coach Brijesh Jha. So it's a collective effort. Obviously, all credit also should be given to Vaibhav as well, because it is he, means his hard work, his honesty, and the best part is his humbleness. Right. Right. As Vaibhav takes the IPL by storm, let's take a look at what this Gen Next Academy looks like, and of course. सो हर हीरे को परखने के लिए एक पारखी की ज़रूरत होती है, और वैभव सूर्यवंशी के पीछे हमारे साथ है समर कादरी जी। ये आपने कहाँ से ये हीरा ढूँढा? क्या कहानी है? क्योंकि पहला जो आपने उनको स्काउट किया है, आप बता रहे थे हमें ऑफ कैमरा कि स्काउट आपने पहला किया है, बट आपको कहाँ से मिला ये लड़का? एक प्रैक्टिस मैच हमने खेला था, तो वो ऑलमोस्ट 11-12 साल का होगा। तब जब मैं क्रिकेट खेल रहा था जस्ट रिटायरमेंट से पहले, तो उसे देखा मैंने, और सब ये बोल रहे थे कि यार ये लड़के को देखना, ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला कि अच्छा 11-12 साल का लड़का है, क्या ही अच्छा होगा, कितना ही अच्छा होगा। जब लेकिन मैंने उसे देखा, मेरी बॉलिंग पे उसने कवर्स के ऊपर से छक्के मारे, ठीक है, फिर आड़ों पे छक्का मारा। तो मैंने बोला यार ये लड़का तो अलग लग रहा है। फिर मैंने 1-2 मैच और खेले, तो समझ आया कि नहीं, ही इज़ डिफरेंट। और फिर जब वो अंडर 19 में गया, अंडर 19 में उसने झारखंड के अगेंस्ट एक 150 प्लस रन किए। और मुझे, मेरे जो टीममेट्स थे झारखंड के, वो कोच भी थे, ईशांक जग्गी, वो कोच थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ये कौन लड़का है बिहार का जो ऐसा खेलता है, लग रहा है कि T20 खेल रहा है टेस्ट में। तो मैंने बोला कि नहीं, ही इज़ रेयर। तो वहीं से हमने पिक किया था उसे। आपका जो एक्सपीरियंस था विद राजस्थान रॉयल्स, आप नेट बॉलर रहे, आपने टाइम बिताया है इस कैंप में, सजेशन जब आपने दिया था कि यार एक 11 साल लोग सीरियसली नहीं लेते, मैं अगर आपके पास आता और बोलता हूँ एक 8 साल का बच्चा, आप बोलोगे ठीक है ले आ देख लेंगे, ऐसा ही है, सीरियसली आप नहीं लोगे। आपने जब फर्स्ट वर्ड पुट इन किया तब क्या रिएक्शन? जुबीन सर को जब मैंने कॉल किया कि सर एक ऐसा लड़का है, आप देख सकते हो, तो वो तब तक अंडर 19 इंडिया खेल चुका था, थोड़ा बहुत नाम आ गया था उसका। पर उनको विश्वास है मुझ पे, और था मुझ पे कि नहीं, समर जो भी बोलेगा वो ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा, क्योंकि मैं उनके साथ ऑलमोस्ट 2010 से साथ में जुड़ा हूँ। तो वो एक बिलीव था, उनको ट्रस्ट था कि हाँ समर जो बोलेगा वो सही रहेगा। तो मैंने बोला कि सर इसको आप देखिएगा, और इसे छोड़िएगा मत। मैंने ऐसे ही बोला कि सर इसे छोड़िएगा मत, ही इज़ वेरी रेयर, ही इज़ वेरी रेयर। तो इसमें उन्होंने मेरी बात को माना, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री नाउ। रेस्ट इज हिस्ट्री, और हिस्ट्री अब लिख रहे हैं अभी। बट सर जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जब कवर करने जाते हैं कि लोग बुमराह को टच नहीं करते, लोग हेजलवुड को टच नहीं करते, कि इनके 4-7-8 ओवर है, निकाल लेते हैं, बाकी बॉलर्स को टारगेट कर रहे हैं। बट ये बंदा पहली बॉल पे छक्का, हेजलवुड को एक एक ओवर में 2-2 चौके, एक एक छक्का मार रहा है। सरप्राइज्ड होते हो आप देख के? नहीं, मैं सरप्राइज़ इसलिए नहीं होता हूँ, क्योंकि ये बचपन से ही हमेशा यही बोलता था कि भैया बड़े बॉलर्स को ही मारना है मुझे। ये वाली जो मेंटालिटी है, मैं क्योंकि खुद दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली में खेला हूँ, तो वहाँ पे भी यही मेंटालिटी है कि बड़े जो भी इंडिया प्लेयर्स हैं, जो स्टेट खेल रहे हैं, उन्हें ही मारना है। तो यही इसका यूएसपी है कि ये बड़े बॉलर्स को मारने में उसे बहुत मज़ा आता है कि भैया मैं आउट हो जाऊँ लेकिन मैं इन्हें ही मारूँगा, तभी नाम होगा मेरा। तो ये है उसका, यही मेंटालिटी, और ये अच्छी मेंटालिटी है और होना भी चाहिए। मैंने मनीष सर से भी ये पूछा, अशोक सर से भी ये पूछा कि सीलिंग क्या है? आपने देखे हुए प्लेयर्स बनते हुए देखे, आपने आपके साथ खेलते हुए, इंडिया खेलते हुए आपने देखा है, बट वैभव सूर्यवंशी का सीलिंग क्या है? कहाँ तक पहुँच सकते हैं? ये तो स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि अभी मतलब उस उम्र है, 20 साल आराम से इंडिया खेल सकता है। और मैंने हमेशा एक ट्वीट भी किया है कि ये जनरेशनल है, कि वो चेंज करता है। एक जनरेशन होती है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर की जनरेशन आई, बिल्कुल। ठीक है, फिर विराट कोहली ने वो जनरेशन चेंज की, फिर वही
अब वैभव सूर्यवंशी भी वही काम करने वाले हैं कि आज के बच्चों को वो बिलीफ दिला देगा कि मैं 11-12 साल में भी खेल सकता हूँ। हाँ। और आप तो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हो, बच्चों में, यंगस्टर्स में वो चेंज ऑफ एटीट्यूड या चेंज ऑफ विजन देखा है कि अब लोग सपना देखना स्टार्ट कर चुके हैं? क्योंकि आपके टाइम में बिहार क्रिकेट काफ़ी अलग था, अब ऑफ कोर्स सपोर्ट भी मिल रहा है, चेंज भी हो रहा है धीरे धीरे, बट लड़कों में जो नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं उनमें अब विजन में चेंज दिख रहा है आपको? बहुत विजन में चेंज है। और जैसे मैं यहाँ ईशान किशन एकेडमी में हूँ, तो जो जिनकी एकेडमी है ईशान किशन, उनका भी यही मानना है कि बिहार में टैलेंट बहुत है। तो हमारा विजन ही है कि यहाँ से लड़के निकले। और मैं बोलता हूँ कि यहाँ मतलब खान है टैलेंट का। आप अगर निकालने जाओ तो गांव-गांव से लड़के मिलेंगे। तो ये यहाँ के लड़के खेलने के काबिल हैं और वैभव जैसे और भी टैलेंट हैं जो हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं और ट्राई करेंगे कि खोजें। समर भाई, जब आपने एक ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जब वो गए, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रायल दिया, तब जुबिन सर ने फ़ोन किया था आपको कुछ रिव्यू देने के लिए कि क्या लड़का भेजा है? नहीं, मैंने सर से पूछा था, मैंने ही पूछा था, मैंने कॉल किया कि सर कैसा लगा? बोला कि अरे यार ये क्या बंदा है? ऐसे ही बोला उन्होंने कि क्या बंदा है ये? पहले ही 3 बॉल 3 छक्के मार दिए उसने। सब उस वक्त राहुल सर भी थे, तो राहुल सर खड़े हो गए, बोले ये कौन लड़का है यार, ये ऐसे मार रहा है। उसके बाद फिर जब इसका ऑक्शन हुआ तो वैभव ने मुझे कॉल किया कि भैया थैंक यू, आपने मुझे भेजा ये वो। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। और ही इज़ जनरेशनल टैलेंट। वो इसमें कोई अनडाउटेबली मतलब वैसा ऐसा मारते हुए मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है। वो तो बहुत साल पहले एक MS धोनी आए थे, जो हाँ। जिनकी कहानी हम सुनते हैं कि टेंटों के बाहर मारते थे, अब स्टेडियम के बाहर IPL में हम देख रहे हैं कि एक 15 साल का बच्चा क्या कर सकता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ से बिहार क्रिकेट के लिए वैभव सूर्यवंशी ने जो एक स्तंभ रखा है कि यहाँ से आप लड़के निकाल सकते हो, आप जाते हो आगे चलते हुए देख रहे हो कि IPL हो गया या इंडियन क्रिकेट हो गया, कि बिहार एक स्टेट जो कि अपने पॉलिटिक्स के लिए, UPSC के बच्चों के लिए ज़्यादा जाना, लिट्टी चोखा के लिए ज़्यादा जाना जाता है, कि अब क्रिकेट के लिए भी धीरे धीरे जाना जाएगा? क्रिकेट के लिए देखिए बिहार में क्रिकेट का टैलेंट तो है। और वैभव के आने से लोगों की आंखें खुल रही कि नहीं यार, यहाँ सिर्फ UPSC IAS नहीं बनते या पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ क्रिकेटर्स भी है, स्पोर्ट्स कल्चर भी है। तो और बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, एक स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ बना रही है और एक राजगीर में स्टेडियम भी बनाया है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 सालों में ऐसे लड़के बहुत निकलेंगे जो IPL खेलेंगे, जो आपको नेशनल टीम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो ईशान किशन का विजन है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। वो है वैसे भी बिहार से, खेला है अपना क्रिकेट झारखंड से है, बट यहाँ पे पटना में अपना एकेडमी क्यों सेटअप किया? आपसे जब बातचीत हुई इसके बारे में तो क्या विजन था उसका? देखिए झारखंड, मैं भी झारखंड से ही खेला हूँ, ठीक है, और ईशान भी झारखंड। तब यहाँ एसोसिएशन नहीं हुआ करती थी, तो जब और ईशान है पटना का ही, ठीक है, तो बचपन से साथ ही रहे हैं, वो हमेशा जूनियर रहा है। तो वो खुद ही बोलता था कि भैया बिहार से लड़के निकालने हैं, क्योंकि झारखंड में टैलेंट है तो यहाँ से भी तो टैलेंट निकले। तो इस वजह से ये विज़न है उनका कि सिर्फ बिहार में नहीं, ऑल ओवर इंडिया ईशान किशन एकेडमी होनी चाहिए जहाँ जहाँ लड़के निकले। और बिहार से स्पेशली बहुत ध्यान देता है वो, हर तीसरे चौथे दिन पे कॉल कर लेता है कि भैया क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जो विज़न है ना उसका, वो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है कि हाँ यहाँ से लड़के IPL इंडिया खेले। ये हमेशा ये पूछता है कि भैया कोई है ऐसा टैलेंट जो आगे चल के IPL खेले या इंडिया खेले। ये तो कमाल का विजन है, और ऐसे विजन आई थिंक आप जैसे प्लेयर्स, आप जैसे स्काउट्स, आप जैसे कोचेस, आई थिंक बिहार क्रिकेट को काफ़ी आगे ले जाओगे। थैंक यू समर भाई आपके टाइम के लिए, Thank you so और much. मज़ा आया बात करते Thanks.
So, from a small town of Tajpur in Samastipur to here in Patna, hope you enjoyed this journey of Vaibhav Suryavanshi, the wonder kid who is taking the world cricket by storm. Debashis, we have spoken to his coaches, we spoke to his teammates as well, we went to his house. A wonderful journey. And if you have to put the entire story in a nutshell, what would you say? Means obviously we both enjoyed means capturing the entire journey of Vaibhav Suryavanshi so far, and what an incredible story. Means he is definitely the wonder kid, and but the real challenge will lie from here on. Means how he copes up with the pressure, the media pressure. Obviously, every time we walks into the field with the bat, means there will be obviously people will expect him to score big runs. But let's hope, Shubhan. Absolutely. And going by what his coaches, what his teammates have said, his childlike innocence will remain, but his lethalness with the bat, his devastating effect with the willow will continue. The year 2011, when this man from this particular region lifted the World Cup, this wonder kid was born here in Bihar, and now he's taking Bihar cricket, which has been engulfed in many controversies in the past. He has brought some positivity into Bihar cricket, and everyone here is just hoping that his story will motivate others to pick up the bat, pick up the ball, and take Bihar cricket forward. But for now, hope you enjoyed this video, his journey to IPL stardom. Drop a like, drop a comment. Let us know what you think about Vaibhav Suryavanshi. Subscribe to the channel and share it with your friends so that it reaches many more who wants to be the next Vaibhav Suryavanshi or perhaps wants to take some motivation from his story. Thank you so much for watching. थे उनके बाद उसका खेलने का अंदाज ही का मैच चल रहा था, सीनियर जोन का मैच चल रहा था, तो ये पूर्णिया अपनी प्रतिभा गेंदबाजी में दिखाना चाहते थे। भैया सभी को